Hello everyone, welcome back to YouTube channel RC Agrahari English classes. Wishing you, wishing you a success in your exams, and today we are going to discuss on Shakespearean tragedies, and particular at the moment we will discuss on Othello. Tragedy Othello that was written in 1604, and Othello is also subtitled by Moor of Venice. Moor is a racial and cultural word belongs to Africa. Moor of Venice ये रेशियल एंड कल्चरल वर्ड है अफ्रीका का. एज अथेलो was a black African appointed as a general in army in Venice. And now we should know that which type of tragedy is this. This one is one of the most horror tragedy of William Shakespeare. Most horror tragedies are Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. And this one is one of them. This one is composed in 1604. And which type of tragedy is this? This one is a love tragedy. Othello is a love tragedy. And what is tragic flaw of the drama? Tragic flaw of the drama is jealousy. जिस कारण से ये ट्रेजेडी हुई वो jealousy है. After then we will discuss on the characters of the plays. As Othello is name of the play, that's why Othello is protagonist of the play. Protagonist बोले तो हीरो. इस ड्रामा का हीरो अथेलो है जो कि मोरिस मिलिट्री जनरल है. मोरिस अफ्रीकन होता है. अफ्रीका का ये रेशियल वर्ड है, जाति सूचक शब्द है. एंड द वर्ड मोर डिनोट्स रेशियल एंड कल्चरल. मोर डिनोट्स टू अ रेस एंड कल्चर. तो मोरिस अफ्रीकन मिलिट्री जनरल है, वर्क्स इन वेनिस आर्मी. ही इज अ ब्लैक मैन and a great storyteller. I am telling you about Othello. Othello is hero of the play. He was black, African, a great storyteller, and works in army as the highest post of general in Venice. After then, we should know about Desdemona. Desdemona is a wife of Othello. Othello and Desdemona secretly married. And Desdemona, impressed by storytelling, great storytelling of Othello. Othello के great मेथड से मिलिट्री की स्टोरी टेलिंग के कारण ये इंप्रेस हुई थी और बाद में इन लोगों ने शादी कर लिया था. एमिलिया. एमिलिया इज डेस्डेमोनाज अटेंडेंट. ये इसकी फ्रेंड है, इसकी अटेंडेंट है, इसकी सहायक है, अक्सर इसके साथ रहती है. आइगो. आइगो is also known as Emilia's husband, and
Igo is that who rules as a main character, a main villain. Igo ही इस ड्रामा अथेलो में मेन विलेन का कार्य करता है और Igo misleads the other characters. Igo is a so jealous person. Igo jealous person था. Particularly, he has jealousy for Cassius. Who was Cassius? You should know Othello's lieutenant. Othello का लेफ्टिनेंट था. आइगो के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस कैसियो से अच्छा था. आइगो को एक्सपेक्टेशन थी कि इसे प्रमोट किया जाएगा एज ए लेफ्टिनेंट, बट अथेलो ने कैसियो को एज ए लेफ्टिनेंट प्रमोट किया. इससे इसकी ये जेलिसी बढ़ी और फिर इसने अथेलो को कैसियो के खिलाफ भड़काया और बताया कि कैसियो का डेस्टिमोना के साथ अफेयर चल रहा है. जब अथेलो को पता चला कि टर्क्स अटैक कर रहे हैं तो ये मूव कर गया टू फेस टर्क्स. एट दैट मोमेंट डेस्टिमोना बहुत घबराई थी, परेशान थी. तो कैसियो उसे सोलाइज कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, एश्योर कर रहे थे कि वो जिस शिप पर गए हैं वो एकदम सुरक्षित है. और इस सांत्वना देने के क्रम में इन्होंने बड़े ही पीसफुली डेस्टिमोना का हाथ पकड़ा था और उन्हें वो प्रयास कर रहे थे. उनके चेहरे पर जेस्चर आए, बहुत परेशान थे अपने हस्बैंड को लेकर कि वहां पर गए हैं, इनका जीवन खतरे में है. तो उसी हाल का फायदा उठाया आइगो ने और बताया अथेलो को कि कैसियो और डेस्टिमोना जो तुम्हारी वाइफ है इसके बीच अफेयर चल रहा है. हम आगे चर्चा करते हैं, स्टोरी देखते हैं. फिर ब्रेबेंसिया ये डेस्टिमोनास फादर है, डेस्टिमोना के फादर हैं. बियांका ये कैसियो की अटेंडेंट है और चीफली ये एक प्रोस्टिट्यूट है. प्रोस्टिट्यूट आप जानते होंगे वेश्या होती है. आपको बता दें जैसे माउस ट्रैप सीन ये हैमलेट में पाई जाती है. अक्सर पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कि वेयर इज ऑकर्ड माउस ट्रैप सीन and that's answer is Hamlet. It can also be asked, ये भी पूछा जा सकता है where occurs handkerchief scene. handkerchief scene कहां पाई जाती है? तो handkerchief scene is occurred in Othello. ये क्वेश्चन may be asked where occurs handkerchief in Shakespearean tragedy, and the answer will be Othello. handkerchief scene Othello में पाई जाती है. बंद कर दो यार. नेक्स्ट कैरेक्टर इज Rodrigo. Rodrigo, a wealthy man of Venice, a wealthy Venetian means a wealthy man of Venice, is manipulated into funding the antagonist Igo plots. जो कि चालाकी से ये फंडिंग करता है. आइगो जो भी कार्य करता है
उसके लिए जो फंड चाहिए वो फंड देता है रॉड्रिगो। ये एक वेनिशियन है, वेनिस का रहने वाला। मेन थीम ऑफ द जो प्ले है अथेलो, वो है डिसेप्शन, जेलसी एंड पैशन। धोखा, ईर्ष्या और पैशन। आपको बता दें, हाँ, तो जो मेन विलेन है आइगो, इसने ये चाहता था कि प्रमोट इसे किया जाए, जो मिलिट्री रैंक इसकी प्रमोट की जाए, लेकिन कैसियो को प्रमोट किया गया। इससे उसमें जेलसी फील हुई। उसने अथेलो को उकसाया और बताया कि तुम्हारी वाइफ डेस्डेमोना और कैसियो के बीच अफेयर है। अथेलो became so angry and he rebuked Desdemona, saying that you are unfaithful for me. And when Emilia know the fact, Emilia आई अथेलो के सामने जब डांट रहे थे डेस्डेमोना को। एमिलिया ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये आपके प्रति अनफेथफुल हो ही नहीं सकती, ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस पर आइगो एमिलिया को मार देता है। उसके बाद अथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना को मार देते हैं और जब रियलाइज होता है कि इनसे गलती हो गई तो अथेलो स्वयं को भी मार देते हैं। इस तरीके से ये कहानी एंड होती है। आपका नेक्स्ट ट्रेजेडी है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मैकबेथ। मैकबेथ is a tragedy of character and moral order. It was composed in 1606. Macbeth इसे ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर या ट्रेजेडी ऑफ मॉरल ऑर्डर कहा जाता है, एंड इट इज कंपोज्ड in 1606. You should know this one is the shortest tragedy of Macbeth. Oh, sorry, Shakespeare. Macbeth is a shortest tragedy of William Shakespeare, and Macbeth ये ट्रेजेडी अबाउट रेजिसाइड है। ट्रेजेडी अबाउट रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ किंग, जिसमें राजा की हत्या कर दी जाती है। यह ट्रेजेडी ऑफ रेजिसाइड है। और इस ट्रेजेडी का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जिसके कारण ये ट्रेजेडी हुई, वो है ओवर एम्बिशन। मैकबेथ की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण ये ट्रेजेडी हुआ। ट्रेजिक फ्लॉ मैकबेथ का है ओवर एम्बिशन। इस मैकबेथ ड्रामा में सेटिंग किस स्थान की दिखाई जाती है? वो है स्कॉटलैंड की। मैकबेथ ड्रामा में जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड की दिखाई जाती है। जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो है किंग डंकन, जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मैल्कम एंड डोनाल्डन, ये सन ऑफ किंग डंकन है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड इज डंकन एंड मैल्कम एंड डोनाल्डन आर सन ऑफ डंकन। मैकबेथ कमांडर इन आर्मी ऑफ किंग डंकन, ये डंकन की आर्मी में कमांडर है। बैंको और मैकबेथ दोनों कमांडर हैं। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की पत्नी है, जो इसे इंस्पायर करती है किंग डंकन की हत्या करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, इसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती है। मैकबेथ ये मैकबेथ का एनिमी है,
ये थेन ऑफ 5 है, थेन ऑफ 5 ये जगह है, यहां का ये सामंत है और मैकबेथ इसे अपना शत्रु मानता है और जो नाटक में, इस ड्रामा में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, एक ड्रामा को आगे बढ़ाने का, वो है 3 विचेस। आपको बता दें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, कॉलविस कार्ड होम एज अ 4th विच। कॉलविस ने किसे 4th विच कहा है? तो याद रहे, इसका आंसर होगा लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को 4th विच कहा है कॉलविस ने, क्योंकि लेडी मैकबेथ बराबर अपने हस्बैंड मैकबेथ को इंस्पायर करती थी, उनकी एम्बिशन को इंस्पायर करती थी और इंस्पायर किया, इन्हीं के कारण किंग डंकन की हत्या किया मैकबेथ ने। क्वेश्चन ये अक्सर आता है, पूछा भी जा सकता है, वेयर द लाइन्स ऑकर्ड, ये लाइनें कहां पर आई हैं? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this place the last syllable of recorded time। जी, ये लाइनें हैं मैकबेथ के एक्ट 5th और सीन 4th की, हम लोग आगे देख रहे हैं। ओके, कभी कभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आता है, हु टोल्ड द लाइन्स, इस लाइन्स को किसने कहा? तो आपका फर्स्ट है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाई नथिंग। जीवन एक कहानी है, ये कहानी किसी इडियट्स के द्वारा बताई गई और यहां पर बहुत ही शोर शराबा है, इसका महत्व कुछ नहीं है। ये लाइन किसने कहा? याद रहे, इस लाइन को मैकबेथ ने कहा था। मैकबेथ ने कहा था एट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के डेथ के समय उसने कहा था, मैकबेथ ने, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाई नथिंग। नेक्स्ट लाइन है, हु अटर्ड दिस लाइन, एंड द लाइन इज, देयर इज नो आर्ट, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन। कोई कला नहीं है जिसके द्वारा हम आदमी के मस्तिष्क में क्या चलता है ये जान जाएं। इसको कहा था किंग डंकन ने। इस लाइन को कहा गया था, किंग डंकन ने कहा था। किससे कहा था? मैकबेथ से कहा था। किंग डंकन ने मैकबेथ से कहा, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन। और कभी कभी पूछा जाता है, सीन्स कौन सी कहां पर ऑकर्ड, जैसे माउस ट्रैप सीन, वेयर ऑकर्स माउस ट्रैप सीन, आंसर है हैमलेट। वेयर ऑकर्स हैंडकरचीफ सीन्स, and its answer is Othello। And then it may be also asked, where occurs banquet scene, dagger scene, and its answer will be Macbeth। मैकबेथ की ये प्रमुख सीन है, बैंक्वेट सीन है, डैगर सीन है और पोर्टर सीन, स्लीप वॉकिंग सीन को कहते हैं, जिसमें लेडी मैकबेथ सोते हुए वो चल रही है, उसकी आंखें पूरी ओपन है लेकिन वो सो रही है, सोते हुए चल रही है, स्लीप वॉकिंग सीन है और स्लीप वॉकिंग सीन को पोर्टर सीन कहते हैं। और ये तीनों सीन्स शेक्सपियर के ट्रेजेडी मैकबेथ में पाई जाती हैं। रोमियो और जूलियट में पाया जाता है। रोमियो और जूलियट में ये लाइन आई है, आई एम फॉर्च्यून्स फूल। ये लाइन भी पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में और ये पूछी भी जा सकती है।
where the lines occur, there is nothing either good or bad, but thinking make it so. इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा या बुरा हमारी थिंकिंग बनाती है। ये लाइनें हैमलेट में आई हैं। विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज में से एक है हैमलेट। ये लाइनें वहीं से हैं। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ये हैमलेट में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट है, नेचर टीचेस बीस्ट्स टू नो देयर फ्रेंड्स। नेचर बीस्ट जानवरों को सिखा देती है, जंगली जानवरों को, कि वो पहचाने उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। नेचर सिखाती है जानवरों को, प्राणियों को, कि उनका दोस्त कौन है। और ये लाइन पाई जाती है, कही गई है कोरियोलेनस में। विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है कोरियोलेनस में कहा गया है कि नेचर वन्य प्राणियों को, जंगली जीवों को सिखाती है कि हम कैसे जानें अपना दोस्त व दुश्मन। ये मैटर आपको उपलब्ध कराया गया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें और कैसा इसकी जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।